Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So in this video I will cover one sample question paper और ये जो sample paper है it is prescribed by CBSE. तो आपका जो paper होगा final exam का वो भी इसी pattern पे होगा. तो time आपका 3 hours का होगा and question जो paper है it will be of 60 marks, right? तो ये देखिए यहाँ पे आपका 24 क्वेश्चंस होंगे, दो सेक्शंस होंगे पेपर में, सेक्शन ए सेक्शन बी। 24 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 17 अटेम्प्ट करने हैं, राइट? सो काफ़ी चॉइस है पेपर में। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है और 30 मार्क्स का है। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ये भी 30 मार्क्स का है। और 40 मार्क्स जो रिमेनिंग है ये तो आपके 30 + 30 60 हो गए। 40 आपका जो है इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क एक्सेट्रा, सारा आपका जो भी है प्रोजेक्ट वर्क वो आपके टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे आपको कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 जो है ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है एंड 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। So first part of the question is which of these is a positive good facial expression? What you can do, आप वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शंस पढ़िए। So I will tell you the correct answer and देखिए आपका आंसर जो आपने गेस किया है whether it is tally with the answer which I am going to share with you. तो इसका आंसर है गुड फेशियल एक्सप्रेशन का nodding while listening, right? Second part, Mr. B works hard to get the Best Employee Award at the end of the year. Which type of motivation? तो there are two types of motivation, internal, external. तो ये वाला जो है this is external motivation. Third part, on the dash side of the status bar, you can see page number, word count. So it is on the left side. Then it refers to the things people do to keep themselves neat and presentable. So right answer is grooming. अच्छा, एक चीज और बेटा, जब आप आंसर पेपर में लिखोगे, लिखने का एक पैटर्न होता है। आंसर नंबर 1 पार्ट 4 करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड राइट द फुल आंसर ऑल्सो, राइट? इस तरह आपको लिखना है। नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन इन व्हाइल इवैल्यूएटिंग द आंसर शीट, बच्चे क्या करते हैं, आंसर नंबर 1 बी। It is wrong way to present your answer. Fifth part, it is an exercise that entrepreneurs do to understand whether there is a market for what they have to offer. तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, कस्टमर सर्वे इज द राइट आंसर। Sixth part, which of the following is the main objective of sustainable development? It is achieving a balance between economic, environmental and social needs. क्वेश्चन नंबर 2 आपका 7 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे भी हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है। सो द इन प्रिंसिपल लाइसेंस इज वैलिड फॉर 18 months within which the entities must fulfill the requirements. तो ये इसके डिटेल वीडियो में आपको सारे एक्सप्लेनेशन टॉपिक का मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है डिटेल वीडियोस, यू कैन गो एंड वॉच दैट। Okay, what is the relationship of the bank with the customer? When the bank hires out the safe deposit locker, तो जब भी बैंक जो है सेफ डिपॉजिट लॉकर कस्टमर को देता है तो बैंक क्या बन जाता है? बैंक becomes the lessor and कस्टमर कौन हो जाता है? कस्टमर हो जाता है लेसी, राइट? तो ये इसका आंसर है। इन बैंकिंग CID refers to customer identification number. B is the right answer. In the general form of partnership, liabilities of partners are unlimited, right? Fifth, which type of loan is
granted by bank for the purchase of white goods and durable. तो आंसर है इसका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन. If the due date is a public holiday, what will be the due date of the promissory note or bill of exchange? So it is preceding business day. तो अगर पब्लिक हॉलीडे है, ड्यू डेट जो पड़ रही है वो पब्लिक हॉलीडे है, तो प्रॉमिसरी नोट की ड्यू डेट या बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट क्या होगी? प्रीसीडिंग बिजनेस डे. Seventh, which loan will be recommended to the customer who requires a loan for short and has no collateral? Personal loan. Right? Now question number 3. 7 में से आपको 6 करने हैं and हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का है. Which of the following is a role typically not performed by the central bank? तो ये आपका है Established tax policies. बाकी 3 जो है वो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस है, लेकिन बी जो है established tax policies, it is not performed by the central bank. Second part, how the interest on saving bank account is calculated. So it is calculated on daily balance basis. The purpose of accommodation bill is, purpose क्या है इसका कि when anyone or both parties are in need of funds, right? Next पे आते हैं, a specific lien on asset is a type of charge. Then fifth part, what is protest in case of bill of exchange? तो आपको पता है कि protest क्या एक formal certificate होता है बेटा. Right? जो it is issued by the notary. Formal तो मैं लिख देती हूँ, formal certificate of the notary public attesting the dishonor of the bill. और नोटेरी क्या कर रहा है? अटेस्ट कर रहा है कि जो बिल है वो डिसऑनर हो गया ऑफ द बिल बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट. सिक्स्थ में आते हैं, which of the following is example of working capital loan provided to corporates? It is cash credit. Name the newly introduced deposit account which combine the feature of saving account and fixed deposit account. तो इसमें it is called as 2-in-1 deposits भी बोलते हैं. और you also call it as smart deposits. It is known as power saving deposits also, or automatic sweep deposits. Question number 4. 6 में से आपको 5 करने हैं, यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. A bank is a financial intermediary because it acts as a link between the saver and the borrower. Right? Which type of deposit account is suitable for business organization? Current account होता है business के लिए. Then in a check there is no grace period as the check is a which instrument? Check is a demand instrument. Which ratio help bank to maintain cash liquidity? It is CRR, that is cash reserve ratio. Which type of securities are not available in the market? So insurance. सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं हम. सिक्स्थ है आपका an instrument given in writing containing unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Name the instrument. It is promissory note. Right? तो it is given in writing और साइन कौन कर रहा है? मेकर, कि वो पे करेगा. तो प्रॉमिस है एक तरह से. सो प्रॉमिसरी नोट में पर्सन जो है वो साइन करता है, अंडरटेकिंग देता है
कि आई विल पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें से 6 है क्वेश्चन, 5 करने हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है अगेन। सो ऑन 1 जुलाई 1955 Imperial Bank of India became the State Bank of India. Part 2, how a minor can open a bank account. ये वाला क्वेश्चन है। तो माइनर कैसे कर सकता है? अंडर द गार्जियनशिप ऑफ नेचुरल पेरेंट्स। तो अंडर द गार्जियनशिप ऑफ नेचुरल पेरेंट्स, राइट। Next, prepayment penalties for the housing loan in India is 0%. Then, out of the following, which is a fee-based product, mutual fund sale is the right answer. Stamp duty is applicable on bill payable after 90 days. What is meant by non-fund facility offered by bank? इसका मतलब होता है कि bank promises to pay. Okay. Now coming to question number 6. 6 में से 5 questions करने हैं और 1 mark का है. So first part is, in a commercial banking, who takes the risk while giving the loan? It is commercial bank. Retail banking is also known by another popular name. तो retail banking का दूसरा नाम है consumer banking. Relationship between a bank and a customer ceases on the following cases, except its B part when the customer invests in securities. Define banker's check. तो banker check का क्या है? It means a check issued by the branch of the bank against the consideration received is known as banker check. तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं एक बारी बोल देती हूँ, अगर आपको आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं. What is check? A check issued by branch of a bank against consideration received is known as banker's check. तो in which year negotiable instrument act was passed? ये है 1881. फिर नेक्स्ट है, बोरो डिफॉल्ट ऑन अ सिक्योर्ड लोन ऑफ 25,000, अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो थी 40,000 की थी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 40,000 की सिक्योरिटी थी और 25,000 का बोरो किया था, ठीक है। सो बैलेंस जो 15,000 है, इट हैज टू बी पेड टू द बोरर, तो सरप्लस है ना, वो अगर नहीं दे पाया बोरर, उसने 25,000 का लोन दिया है लेकिन बदले में अगर 40,000 की कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी रखवाई है बैंक के पास, तो बैंक जो है 25,000 अमाउंट काट के 15,000 बोरर को वापस कर देगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है, 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ असर्टिव कम्युनिकेशन. असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो बहुत क्लियर है, डायरेक्ट है, ठीक है. So communicating in assertive manner can help you to minimize conflict. अगर आप ढंग से अपनी बात किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर पा रहे हैं डायरेक्टली और बिना उसके इमोशंस सेंटिमेंट्स को हर्ट किए, तो यू कैन मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट, यू कैन कंट्रोल एंगर. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन अ टीम? तो टीम में काम करने का क्या फायदा होता है? सबसे पहला तो ये कि एवरीवन हैज अ रोल टू प्ले इन अ टीम. तो हर किसी का एक अलग से डिफाइंड रोल होता है, ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा. तो ये जो आपस में प्रेशर होता है मेंबर्स में कि उसको एक को दूसरे से आगे बढ़ना है, दैट प्रेशर इज नॉट देयर बिकॉज एवरीबडी इज परफॉर्मिंग, राइट. और अगर कोई भी टीम मेंबर जो है, एवरी टीम मेंबर प्रोवाइड सपोर्ट टू द अदर टीम मेंबर, राइट. सो कोई अगर मिस्टेक किसी भी एक टीम मेंबर से होती है, दूसरा टीम मेंबर उसको फिक्स कर देता है. List the advantages of using a word processor to write a letter. So आप एक डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्यूटर पे स्टोर कर सकते हैं. अगर फ्यूचर आपने टाइप कर लिया लेटर वर्ड प्रोसेसर में, फ्यूचर में आपको दोबारा वो रेफरेंस के लिए चाहिए तो यू कैन फाइंड इट, राइट. एडिटिंग टूल्स भी होते हैं वहाँ पे, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर्स. फिर आप कोई भी वर्ड इंसर्ट या रिप्लेस कर सकते हो, कोई फ्रेज इंसर्ट रिप्लेस कर सकते हो, राइट, विदाउट affecting the entire document. Now list
what are the two ways of understanding the market? So मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहला ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कॉम्पिटिटिव द बिजनेस इज. Question 11, list any two stakeholder, describe why they are important for the green economy. So पहला स्टेक होल्डर आप मेंशन कर सकते हो गवर्नमेंट, एंड सेकंड वुमेन. सो गवर्नमेंट जो है दे मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉज, पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, राइट. एंड वुमेन दे फॉर्म वन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, दे हैव बिगर रोल इन सोसाइटी, हाउस होल्ड्स. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है इफ वी फोकस ऑन वुमेन्स राइट एंड also make them participate in the green economy. Next आपके 5 में से you have to attempt 3. यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. क्वेश्चन 12, briefly explain 2 reasons why individual need bank. तो पहला रीजन है सेफ्टी के लिए चाहिए, आप अपना पैसा सेफली अर्निंग्स रख सकते हो, और दूसरा आप यू गेट इंटरेस्ट ऑन योर इंटरेस्ट एज अर्निंग्स, राइट. तो आप घर पे पैसा रखोगे, उस पर कोई इंक्रीज तो हुआ नहीं, बैंक में रखोगे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा विच विल हेल्प इन इंक्रीजिंग योर अर्निंग्स. 13, स्टेट द पर्पस ऑफ इशूइंग पासबुक फ्रॉम बैंक टू कस्टमर. तो पासबुक क्या, एक समरी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, राइट, विच हैव अकर्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो अब पर्पस क्या है, पर्पस क्यों है पासबुक इशू करने का, व्हाई द पासबुक इज इशूड, बिकॉज अब जो है शिफ्ट, देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट, राइट. सो you get to have this electronically with the help of internet banking. तो आपका ईज हो जाता है, आपको बैंक जाने की जरूरत, जैसे आप जाते हैं, राइट, बैंक में जाते हैं, पासबुक आपको मिलती है, आप पासबुक में एंट्री करवाते हैं. सो लेकिन रिसेंटली अभी हमें क्या देखा है, अब शिफ्ट हो रहा है. अब लोग क्या करते हैं, बैंक पासबुक बैंक जाने की जगह, पासबुक में एंट्री करवाने की जगह इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इशू करवा लेते हैं. सो अगर पासबुक के बारे में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, इट इज अ समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच हैव अकर्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ बैंक अकाउंट, राइट. नाउ हाउ मैरिड वुमेन इज अ स्पेशल कस्टमर टू बैंक, स्टेट 2 पॉइंट्स टू जस्टिफाई. सो मैरिड वुमेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है एंड कैन बाइंड हर पर्सनल एसेट्स ऑल्सो. सो बैंक जो है वो बहुत हैज टू बी वेरी कॉशियस, हैज टू बी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस जब भी वो लोन देता है मैरिड वुमेन को, क्योंकि बैंक के पास कोई रेमेडी नहीं होगी अगेंस्ट दैट वुमेन अगर उसके पास पर्सनल एसेट्स नहीं, राइट. So that and her husband will also not be liable for any loan which his wife has taken from the bank except in the following 2 cases. Which cases? अगर लोन जो लिया है it is taken, लोन वाइफ ने जो भी लिया है वो अपने हस्बैंड की कंसेंट से लिया है, एंड लोन जो वाइफ ने लिया है वो लिया है कोई भी नेसेसिटी, कोई भी ऐसी चीज खरीदने के लिए जो नेसेसिटी हो, जो उसका हस्बैंड उसको नहीं दे पा रहा, इसलिए उसने लोन लिया. तो आई एम जस्ट ब्रीफिंग अगेन क्यों बैंक को कॉशियस होना पड़ता है वुमेन को, मैरिड वुमेन को लोन देते हुए, क्योंकि मैरिड वुमेन को वो बाइंड नहीं कर पाएगा अगर मैरिड वुमेन के पास पर्सनल एसेट्स नहीं है. वो तभी कर पाएगा, और ना उसका हस्बैंड जो है ही इज ऑल्सो नॉट लाइबल टू pay for any loan which his wife has taken except under 2 circumstances. अगर लोन हस्बैंड की कंसेंट से लिया हो और वाइफ ने लोन इसलिए लिया हो क्योंकि हस्बैंड उसकी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा. 15, लिस्ट एनी 2 distinctions between call money and notice money. so call money क्या है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट अर्निंग फाइनेंशियल लोन है, और नोटिस मनी क्या है कि बोरिंग और लेंडिंग जो होता है यहाँ पे अनसिक्योर्ड फंड्स में होता है, राइट. फिर कॉल मनी का मतलब क्या है, इट डील्स इन ओवरनाइट फंड्स, और नोटिस मनी मींस इट डील्स इन फंड्स फॉर 2 to 14 days इन मनी मार्केट. तो इसका नेक्स्ट है व्हाट डज नोटिस ऑफ डिसऑनर मींस. तो जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिसऑनर हो जाता है तो होल्डर जो है वो सारी प्रायर पार्टीज, चाहे वो ड्रॉर हो, इंडोर्सर्स हो,
ठीक है, उनको वो स्यू कर सकता है, बट he has to give notice of dishonor to them. Then out of 3 2 क्वेश्चंस करने हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है. स्टेट 3 इनिशिएटिव विच आर टेकन बाय आरबीआई इन इम्प्रूविंग द पेमेंट मैकेनिज्म. तो कब एक तो है कंप्यूटराइजेशन, सेकेंड इज मैकेनाइजेशन, एंड थर्ड इज हाई वैल्यू क्लियरिंग. तो ये मैंने हाई वैल्यू क्लियरिंग सारा एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल वीडियो में, आप देख सकते हैं. व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्या प्रोसेस है कि जितने भी अगर प्रोसीड्स है क्राइम से जो मिला है, ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस वेयर बाय प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू लेजिटिमेट मनी. यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, अगर किसी ने भी अपना पैसा गलत काम से, क्राइम से कमाया हुआ है और वो उसको बैंक में एंटर कर रहा है उस पैसे को बाय शोइंग इट एज अ लीगल मनी, इलीगल मनी की तरह नहीं, इट ही इज एंटरिंग that money into the bank account by showing as if it is a legal money. तो objectives क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के, कि क्रिमिनल जितने भी एक्टिविटीज हैं या एलिमेंट्स हैं, राइट, इट शुड स्टॉप. तो मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट क्रिमिनल एलिमेंट्स फ्रॉम यूजिंग द बैंकिंग सिस्टम, कि वो लोग जो भी क्राइम करते हैं वो लोग बैंकिंग सिस्टम में एंटर ना कर सके. एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कि बैंक जो है क्यों इसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रमोट करते हैं, कि ये प्रिवेंट कर सके मनी लॉन्ड्रिंग को, टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स, राइट, एंड टू मैनेज द रिस्क प्रूडेंटली, ताकि वो अपने रिस्क जो है मैनेज कर सके. इफेक्ट्स क्या है एंडोर्समेंट पे. सो लीगल इफेक्ट क्या है एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का, कि जो प्रॉपर्टी होती है इंस्ट्रूमेंट में वो ट्रांसफर हो जाती है एंडोर्सर से इंडोर्सी में, राइट, और इंडोर्सी को जो है राइट मिलता है फर्दर नेगोशिएशन का, एंड राइट टू sue on the negotiable instrument in his own name against all other parties. तो ये भी मैंने डिटेल में कराया हुआ है. नेक्स्ट पे आते हैं. 5 में से 3 करने, हर क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क का है. फंक्शंस क्या हैं आरबीआई के, बहुत सारे फंक्शंस हैं. मॉनेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है फाइनेंशियल सिस्टम की, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है आरबीआई. RBI is also issuer of currency and RBI also plays developmental role. Now केस स्टडी है ये, तो इस केस स्टडी में आपको जो है सोना मोना रोमा रीमा एक बैंक में गए, बैंक अकाउंट ओपन कराया. उनको दे आर अनअवेयर कि कौन से बैंक अकाउंट होते हैं. उन्होंने रिलेशनशिप मैनेजर को बोला कि उनको बताएं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में. तो एक्सपीरियंस पर्सन था रिलेशनशिप मैनेजर. फर्स्ट इंक्वायर्ड अबाउट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, राइट. सो मोना ने शेयर किया कि उसके पास कैश प्राइस है 10,000 का, एंड उसने अकाउंट में, उस अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करना चाहती है जिसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है. She also mentioned that she does not need to withdraw this money before 5 years. और उसने ये भी बोला मैनेजर को कि मेरे को 5 साल से पहले पैसे नहीं जो है निकालने. तो कौन सा अकाउंट बेटर रहेगा उसके लिए, फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है और पैसा जो है उसको जल्दी नहीं निकालना, 5 साल के बाद निकालना है, तो फिक्स डिपॉजिट बेटर है. नेक्स्ट रोमा ने बोला उसने मनी अर्न करना अभी शुरू किया ट्यूशन से, और वो अपनी सेविंग्स जो है बैंक अकाउंट में रखना चाहती है, तो उसके लिए बेटर है सेविंग्स अकाउंट. सोना ने एक्सप्रेस किया कि उसको 500 अपनी पॉकेट मनी से हर मंथ डिपॉजिट कराने हैं और 2 साल तक करती रहेगी वैसा, ठीक है, क्योंकि उसको पैसे सेव करके एक डिजाइनर लहंगा खरीदना है. तो कौन सा अकाउंट बेटर है सोना के लिए, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट. एंड लास्ट इज रीमा ने एक बिजनेस रन कर रही है, तो बिजनेस में के लिए कौन सा अकाउंट खोला जाता है, करंट अकाउंट. उसके एडवांटेजेस आपके डिटेल वीडियो में है, राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं. गिव द फुल फॉर्म ऑफ CIBIL. इट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो
लिमिटेड, ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन बैंकिंग? तो ये इम्पोर्टेंट है पूरा इसका जो, क्योंकि CIBIL क्या करता है, कमर्शियल कंज्यूमर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, राइट। एंड इनके जो स्कोर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लोन अप्रूवल प्रोसेस में। जो भी ये स्कोर बताते हैं तो उस स्कोर के बेसिस पे बैंक जो है लोन अप्रूव करता है, राइट। इसका डिटेल मैंने कवर किया हुआ है, तो मैं इस वीडियो में नहीं डिटेल आंसर कवर कर रही। यू कैन गो एंड वॉच द डिटेल वीडियो। ओवरड्राफ्ट का मतलब बताना और लिमिटेशन बता रही है। ओवरड्राफ्ट क्या है? ये वो फैसिलिटी है जो बोरोर को दी जाती है कि ही कैन विड्रॉ द फंड्स फ्रॉम द अकाउंट, ठीक है। चाहे अगर सपोज उसके बैंक अकाउंट में 10,000 है और उसको 50,000 रुपए की कोई चीज खरीदनी है, तो बैंक जो है लोन देता है एक तरह से कस्टमर को कि उसके अकाउंट में अगर उतना पैसा भी नहीं है, बट बैंक गिव्स अलाउ हिम टू विड्रॉ मोर मनी, दैट इज ओवरड्राफ्ट। लेकिन लिमिटेशन क्या है? कॉस्ट होता है इसमें, इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और बैंक कभी भी चाहे तो ये ओवरड्राफ्ट कैन रिकॉल द ओवरड्राफ्ट इंटायर अमाउंट एट एनी टाइम, राइट। और ओवरड्राफ्ट जो है, for getting the overdraft one has to give the security to the bank by giving business assets, right? Then explain the characteristics of negotiable instrument, last question 24। इंस्ट्रूमेंट है ये राइटिंग में, अनकंडीशनल ऑर्डर है, राइट। एंड देयर शुड बी सर्टेनिटी, सम जो प्रॉपर है इंस्ट्रूमेंट में मेंशन होना चाहिए। इट इज पेबल टू द ऑर्डर और बियरर, राइट। तो ये सारा डिटेल में मैंने कराया हुआ है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट मोड पे कराए हैं ये वाले आंसर्स, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। सो बाय कवरिंग दिस यू मस्ट बी हैविंग द आइडिया कि किस तरह के आपका पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका सैम्पल पेपर था 2022-23 का जो CBSE ने प्रिस्क्राइब किया था। आई होप इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, प्लीज hit the like button, share and subscribe my channel. Thank you for watching the video.